স্যার গ্রুপ মেল মানে স্যার ইউনিভার্সিটি থেকে যে মেলটা দিচ্ছে ওটা? हाँ 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 ওকে স্যার। यार ये तो नहीं है। বাকিগুলো আমি পাঠিয়ে দেবো, আগে একটু চেক করে আমাকে বলো যে সব দেখাচ্ছে কিনা। স্যার দুটো দেখাচ্ছে। তিনটে আসার কথা, তিনটে পাঠিয়েছি, কেননা প্রবলেমটা যেটা হয়েছিল আগের বারে কিছু গুগল সার্ভারে প্রবলেম ছিল, তাই জন্য আমার ভিডিওগুলো 3 বার ভেঙে ভেঙে এসছে, টোটালটা আসেনি। दैट्स पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। प्रीवियस जो क्लास हुआ था कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाला लैब जो था, वो एक वीडियो में नहीं आया, वो मेरे पास ही तीनों वीडियो में आया था। सेगमेंट का कुछ पार्ट भी नहीं है, अभी देख रहे हैं हम, मेरे पास भी नहीं है। कुछ कुछ के उस जो पार्ट है वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता नहीं, जो मिला हमने ग्रुप मेल में फॉरवर्ड कर दिया, देख लेना, देख पा रहे हो क्या नहीं। দুটো মেল এসেছে। দুটো মেল এসছে, ये वाला? আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকটা আমি তাহলে দেখছি, পাঠিয়ে দেবো। নেটওয়ার্ক আমি পাঠাচ্ছিলাম তখনই নেটওয়ার্কের প্রবলেম তৈরি হয়ে গিয়ে সব বন্ধ হয়ে গেছে, আমি আরেকবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ক্লাসের টাইমে প্রতিদিনই কি প্রবলেম হয় কে জানে। सर वो जार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जार फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद सर जार फाइल एक्सट्रैक्ट क्यों होगा सर? तुम्हारे पास तो जो रन था होना वो चाहिए ना जेडीके से। जेडीके फाइल, जेडीके तो तुम्हारे मशीन में इंस्टॉल है, ये ओके सर, एक उसके मशीन में नहीं है इंस्टॉल जेडीके। जेडीके इंस्टॉल होना देख के चाहिए, पता चल रहा है। पहला वाला जेडीके इंस्टॉल करो, उसके बाद ये जो सिमुलेटर है उसके रन करना है। जेडीके फर्स्ट इंस्टॉल करो, जेडीके नहीं इंस्टॉल करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है सर, मैं एक बार जेडीके और एक बार जेडीके पहले इंस्टॉल करो 64 बिट वाला, ये विंडोज 10 है ना, 64 बिट वाला होगा, तुम जेडीके फर्स्ट इंस्टॉल करो। ओके राजश्री, স্যার আমি 32 বিটটা করেছিলাম, ওটা হয়ে গেছে। ওটা চলছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে। আর কারো কোনো প্রবলেম আছে? सर बोलो, यहाँ पे ये देखिए, प्रेजेंट करो। जेडीके डाउनलोड है, दिख रहा है? जेडीके, जेडीके डाउनलोड किया, जेडीके। दोबारा कब आप? ओके तुम एक काम करो ना, तुम सीएमडी में जाके सीएमडी में जाओ, हाँ। सीएमडी, उसके बाद वो हाँ, सर। उसके बाद लिखो जेडीके। नहीं सर, अभी दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ सर, नए से डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जेडीके डाउनलोड कर दूं सर? नहीं जेडीके वाला? की डाउनलोड हुआ तो तुमने किया जेडीके? नहीं सर, अभी वो नहीं किया, वो फिर तो से करो, डाउनलोड वो जेडीके डाउनलोड करो, जेडीके तो डाउनलोड करना ही होगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे। कौन सा वाला करना है? नीचे नंबर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाओ, विंडोज 60 बिट, विंडोज 64 बिट वाला। हाँ सर, विंडोज 162 MB। 60 हाँ 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 वो वाला चलो। হ্যালো স্যার। বলো। স্যার আমি জয়েন করে গেছি মানে কম্পিউটারে, তো হ্যাঁ মানে একটুখানি দাঁড়াও, ওটা দেখে নি তারপর তুমি প্রেজেন্ট করবে। আচ্ছা স্যার। सर डाउनलोड होने के बाद मैं प्रेजेंट करता हूँ सर, ठीक है? हाँ ओके ओके, डाउनलोड করে ইনস্টল করো, তারপর আমি দেখছি। ওকে তুমি हाँ, প্রেজেন্ট ठीक করো, है। তুমি প্রেজেন্ট করো। স্যার দেখতে পাচ্ছেন? প্রেজেন্ট করো, প্রেজেন্ট না করলে দেখতে পাবো না, প্রেজেন্ট করো। আসেনি এখনো, প্রেজেন্ট হয়নি এখনো। স্যার দেখতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ প্রেজেন্ট হচ্ছে, এখনো আসেনি, প্রেজেন্ট হচ্ছে। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে কি লিখবো স্যার?
তুমি জেডিকে ইনস্টল করোনি তো? তুমি google.com এ না। গিয়ে ফার্স্টে লেখো যে জেডিকে ডাউনলোড জেডিকে। তোমার উইন্ডোজ কত? উইন্ডোজ 7 মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, Linux উইন্ডোজ 7 32 বিট স্যার। উইন্ডোজ 7 32, তাই তো? হুম। তাহলে তুমি লেখো যে ডাউনলোড জেডিকে 32 বিট। জেডিকে ডাউনলোড স্যার দেখতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো 32 বিট উইন্ডোজ 7 দেওয়াই ছিল। হ্যাঁ, কোনটা প্রথমটা করবো দেখো, স্যার? হ্যাঁ ফার্স্ট প্রথমটা একটা? দেখো, হ্যাঁ দেখো প্রথমটা যাও। দেখো তো উইন্ডোজ 7 32 বিটের কোনো কিছু অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। স্যার এখানে তো এরকম দেখাচ্ছে স্যার। এই লিঙ্কটা নয়, আরেকটা যাও, ব্যাক করো আরেকটা লিঙ্কে যাও। 32 বিট ডাউনলোড দেখে, এটা হ্যাঁ স্যার? ওখান থেকে পেয়ে যাবে। এই যে পাওয়া যাচ্ছে দেখো, ফ্রি ডাউনলোড 154 জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট 32 বিট। হ্যাঁ নামাও দেখি কি দেয় দেখি। স্যার ডাউনলোড করবো? করো করো। জেডিকে ঠিক আছে, 32 বিট ঠিক আছে। স্যার কোথায়? ডেস্কটপ ডেস্কটপে রাখবো করো, তো? ডেস্কটপই করো, করো ডেস্কটপই করো। Yes, sir. রান করো। স্যার লেট হয় স্যার? হ্যাঁ না, তুমি জাস্ট ডবল ক্লিক করো তাহলেই দেখিয়ে দেবে সবকিছু। একটা উইজার্ড আসবে, হ্যাঁ এটা নেক্সট স্যার? নেক্সট করে কিছু করতে হবে না, নেক্সট করো। তোমায় কিছু চেঞ্জ করতে হবে না, বাই ডিফল্ট যা পাথ আছে সেই পাতেই জাভাকে রাখবে। কোনো কম্পাইলেশন নেই, জাস্ট রিকোয়ার্ড জাভার রান টাইম এনভায়রনমেন্টটা দরকার। তার জন্য জেডিকেটা ইনস্টল করতে হবে, তারপর তোমাকে সিমুলেটরটা নয় রান করতে হবে, ব্যাস আর কিছু না, খুব সহজ। ओके, साइज কতটা হয়েছে? सर मेरा इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो गया, वाह। उसके बाद सिमुलेटर रन करके प्रोसेसिंग देखो, सिमुलेटर रन करके हाँ दिखो सर। जो हो रहा है क्या नहीं। हाँ सर मेरा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये हाँ सर। जो सिमुलेटर है वो रन करो, देखो रन हो रहा है क्या नहीं। जिस फोल्डर में सिमुलेटर वाला है डाउनलोड किया, उस पाथ में पहले जाओ, हाँ सर। सीएमडी करके उस पाथ में जाओ।
सर मेरा डायरेक्ट ओपन हो गया। डायरेक्ट ओपन हो सर गया होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक ठीक है है, सर, मेरा तो हाँ हाँ, तो डायरेक्ट ओपन हो गया तो ठीक है, कोई बात मेरा नहीं। भी ठीक डायरेक्ट है, ओपन हो गया था। मैंने बोला था ना, हमने चेक डायरेक्ट। नहीं किया, तुमने एक बार देखना, जो डबल क्लिक करोगे तो होगा क्या, हाँ नहीं सर। नहीं होगा तो वो कमेंट से चलाना होगा, वो तो चल रहा है तो ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ओके। ठीक है और सर और फिनिश किसी का করবো তো प्रॉब्लम है, और किसी का प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में, रन कराने में? স্যার এটা এসছে স্যার ইনস্টল নাও इंस्टॉल ना, ओके है, करो करो करो। হ্যাঁ, ইনস্টল নাও করেছো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, ক্লিক ইনস্টল করেছি নাও করো, সময় লাগবে। এটা স্যার এটা ডাউনলোড হয়েছে। হুম, স্যার ইনস্টলটা মানে কি ইনস্টল হলো সেটা স্যার দেখা যাবে না ইনস্টল কি হয়েছে? ইনস্টল হয়নি এখনো মনে হয়। স্যার এটা যেদিকে তো না, অ্যাপটা এটা হ্যাঁ, আবার দাঁড়াও, একটুখানি দাঁড়াও, ওয়েট করো, ইনস্টল করবে। আচ্ছা এইটা এসছে স্যার उसके बाद नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, ये इंस्टॉल হচ্ছে এবার। ক্যান্সেল বলে আসছে স্যার আর নেক্সট তো আসছে না আচ্ছা স্যার ওয়েট এবার করো, ওয়েট এসছে করো, ওয়েট করো, ওয়েট করো, এসছে সময় স্যার লাগবে। এবার নেক্সট নেক্সট করো, নেক্সট নেক্সট। তো কবিটের মেশিন তোমার, এ র‍্যাম কত আছে তোমার মেশিনে? 4 জিবি স্যার কত? 4 4 4 জিবি, জিবি আচ্ছা। একটু ফাস্ট হওয়ার কথা, জাভা তো একটু বড় সফটওয়্যার, সময় লাগে। প্রসেসর স্যার একদম মানে P4 পেন্টিয়াম ও আচ্ছা। খুব একটা চালানো হয় না তো মানে হুম। চললে মানে কি সব আছে কি বুট সেটা কিন্তু কি সব কিন্তু আছে তোমাকে চালাতে হবে এটাকে, তুমি মেশিন না চালালে তো তুমি শিখতে পারবে না। না এমনি স্যার চলে মানে বাবা আর কি কাজ করে তো এবার আমার আচ্ছা সেরকম ইউজ করা হয় না ওই আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্ট দিলে তখন আর কি চালাই কিন্তু তুমি তাহলে প্র্যাকটিস করো কি করে? মানে কলেজে থাকলে তো স্যার কলেজের কম্পিউটারই করি এবার বাড়িতে মানে খুব প্রয়োজন মানে যেটা দরকার বা অ্যাসাইনমেন্ট হুম সেটাই করি আর মানে যেমন ভার্চুয়াল যে মেশিন আছে ওইটা হুম হুম। ডাউনলোড করা আছে ওটা দেখিয়েছিলেন তো বাকিগুলো স্যার মানে যেহেতু জায়গাও কিন্তু সেরকম ভার্চুয়াল নেই আর মেশিন দিয়ে প্রসেসর চালাতে গেলে তো তোমার একটা পিসি থাকতে হবে। তুমি এই মেশিনে হয়তো ভার্চুয়াল মেশিন করেছো, কিন্তু নেয় ভার্চুয়াল মেশিন তোমার টানতে পারে? মানে খুব স্লো হয় কি? হ্যাঁ স্যার ভার্চুয়াল খুবই মেশিন স্লো হয়। চলে না না চলে, খুব স্লো আচ্ছা, হয় না খুব স্লো হয়, তাহলে ভার্চুয়াল হ্যাঁ মেশিনেই কাজ চলে করবে, অসুবিধা কি আছে? কারণ তোমাদের উইন্ডোজ সার্ভার বা লিনাক্স সেটা সার্ভার বা সিসকো ফিসকো কিছু করতে হবে না। ওপরে দেখো, ওপরে দেখো, ওপরের দিকে দুটো বাটন আছে, ওই যে নিচে নিচে, তার থেকে নিচে দেখো দুটো এরকম বাটন দেখা যাচ্ছে এখানে। আরে এটা ওইদিকে নয়, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওইটা বা এইটা, ওইটা করো, এইটা নয়, হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো নিয়ে নেবে। তুমি একটা কাজ করো, এই সুযোগে তুমি সিমুলেটরটা নামিয়ে নাও। সিমুলেটরটা কি আছে তোমার কাছে নামানো? না স্যার ওটা সিমুলেটরটা ওটা নামাতে হবে ডাউনলোড হতে হতে সিমুলেটরটা নামিয়ে নাও। সিমুলেটরটা নামিয়ে নিলে তাহলে চট করে কাজটা হয়ে যাবে, নাহলে সময় চলে যাবে। হ্যাঁ স্যার
স্যার বলুন। লেখো ভার্চুয়াল ল্যাব, লেখো ভার্চুয়াল ল্যাব, google.com গিয়ে ভার্চুয়াল ল্যাব লেখো। কম্পিউটার সায়েন্স। কম্পিউটার সায়েন্সে যাও। ওখানে চলে এসো, নিচে দেখো কম্পিউটার আর অর্গানাইজেশন আর্কিটেকচার বলে কোনো সাবজেক্ট আছে, নিচে চলে এসো, নিচে নামো, নিচে নামো। কম্পিউটার আর্কিটেকচার অর্গানাইজেশন, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এই স্যার সফটওয়্যার স্যার। হ্যাঁ সফটওয়্যারসে চলে যাও। আচ্ছা সফটওয়্যারসে গিয়ে তোমার 32 বিটের সিমুলেটরটা নামিয়ে নাও, উইন্ডোজ 32 বিট। এটা স্যার। নামিয়ে নাও, ডেস্কটপে নামিয়ে নাও। স্যার এটা কেটে দেবো স্যার ওটা তো? না এখন হয়নি, স্ট্যাটাস দেখা, কিছু কাটতে হবে না, কিচ্ছু কাটতে হবে না, এখন ওটাকে শুধু এক্সট্রাক্ট করে রাখো। ভার্চুয়াল ভিল্যাবের যে সিমুলেটরটা ডাউনলোড হলো সেইটাকে শুধু এক্সট্রাক্ট করে রাখো। না এক্সট্রাক্ট তো অলরেডি করাই আছে, শুধু জার ফাইলটাই নেমেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়েট করো, যাওয়াটা পুরো কমপ্লিট হোক, তারপর। কমপ্লিট হয়নি, কাটবে না কিছু, হয়ে যাচ্ছে মনে হয় স্যার এটা। একটু সময় লাগবে, একটু সময় লাগবে, দাঁড়া তো ফিনিশ অপশন দেবে তারপর। अच्छा आज ये हम लोग जो करेंगे वो है, हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोल देते हैं। क्यों बोलता है? इसीलिए हमको ये प्रूव करना होगा नैंड गेट और नॉर गेट से हम एंड नॉट और गेट बना सकते हैं। सो ये प्रैक्टिकल हम करेंगे, समझेंगे क्यों हम बोलते हैं नैंड और नॉर गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। हम एक करके दिखाएंगे, तुम लोग आरेख करेंगे, करके दिखाओगे। उसके बाद टाइम मिला तो हम लोग दिखाएंगे इस सिमुलेटर में हम लोग कैसे एडर बना सकते हैं, एडर सर्किट बना सकते हैं। इस सिमुलेटर में कुछ चीज है, हाफ एडर और फुल एडर के लिए चिप है, वो चिप हम कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी तक तो स्टार्ट नहीं हो पाया, इसलिए कुछ टाइम लग जाएगा। क्योंकि जो हाफ एडर फुल एडर जो है यहाँ पे चिप है, हम लोग जब ऑफलाइन में काम करते हैं वो डिफरेंट तरह का चिप रहता है, हम चिप लेके ब्रेड बोर्ड में पुट करके डिफरेंट लेग में वायर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो सॉफ्टवेयर्स है, ये जो चिप है हाफ एडर और फुल एडर वाला, ये चिप में कौन सा पिन में हम इनपुट कनेक्शन करेंगे, कौन सा पिन में हम आउटपुट कनेक्शन करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। ओके क्लोज करो, क्लोज करो। ठीक है, तो जावा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद जो सिमुलेटर है, सिमुलेटर को रन करो, डबल क्लिक करो, देखिए सिमुलेटर ওপর, তাহলেও দেখছি অনেকে চলছে, যখন বলছে তাহলে সিমুলেটর চলবে। এই তো স্যার। ওকে ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে আমাদের সিমুলেটর রেডি হয়ে গেছে। তুমি তাহলে এবার এটাকে প্রেজেন্টটাকে করে দাও, স্টপ শেয়ারিং করে দাও। তাহলে আমরা আবার কাজ শুরু করি। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে কারোরই কোনো প্রবলেম নেই, जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, राइट? यस सर। यस सर।
तो मोरलेस हम सोच सकते हैं क्या तुम्हारा मशीन्स में ये सिमुलेटर है, तुम काम कर सकते हो अभी। ओके, सो हम फर्स्ट जो प्रैक्टिकल करेंगे वो है, हमने गेट बेसिक जो गेट्स था हमने किया है, एंड गेट और गेट नॉट गेट हमने किया है, बोला था। और जो गेट्स है तुम बनाओ, नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, स्नॉर गेट, जो गेट है वो इजी है, सेम चीज ही है, डिफरेंट गेट्स का सिंबल है, इनपुट बिट्स का सिंबल है, आउटपुट बिट्स का सिंबल है, डिफरेंट कनेक्शंस है, तुम कनेक्शंस करके देख लेना ट्रूथ टेबल आ रहा है क्या नहीं, एक बार चेक कर लेना। जो जिसका हुआ है ओके, जिसका नहीं हुआ है अभी इंस्टॉल हुआ है सॉफ्टवेयर, एक बार देख लेना, आज ही देख लेना वो सब प्रैक्टिकल करके वो ट्रूथ टेबल आ रहा है क्या नहीं। हम आज दिखेंगे जो नैंड गेट और नॉर गेट हम बोलते हैं, ओके नैंड गेट नॉर गेट यूनिवर्सल गेट, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम नैंड गेट और नॉर गेट से कोई भी एक्सप्रेशंस, बुलियन एक्सप्रेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी गेट हम बना सकते हैं। तो हम लोग एक बार लॉजिक জুম করার জন্য কি বলেছেন? হ্যাঁ বলো। ব্রেডবোর্ডটা জুম করার জন্য কি বলেছিলেন? কন্ট্রোল প্রেস করে স্ক্রল করো, কন্ট্রোল প্রেস করে মাউসটাকে স্ক্রল করো। ओके सर, हो ठीक गया। है, ठीक है। तो हम दिखेंगे आज, सो हम एक कोई भी एक गेट दिखेंगे, नैंड और नॉर वाला से कोई भी एक गेट दिखेंगे, यूनिवर्सल गेट क्यूब बोला, तुम उस तरह से ही और एक जो गेट रहेगा वो बनाओगे। उसके बाद हम दिखेंगे एडर क्या होता है, हाफ एडर हम कैसे बनाएंगे गेट से, नॉर्मल गेट से हम कैसे बनाएंगे। उसके बाद हाफ एडर का जो चिप है, सॉफ्टवेयर वाला जो चिप है वो लगा के हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो चिप का डिजाइनिंग जो है उसमें डिफरेंट लेग्स जो होता है, कौन सा लेग में हम कौन सा इनपुट देंगे, कौन सा लेग में आउटपुट आएगा, ये जानना जरूरी है। उसके बाद फुल एडर बनाएंगे, ठीक है। बट फुल एडर अभी तक नहीं हुआ, हम दिखाएंगे सब कुछ। হ্যালো 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 স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। हेलो ओ हेलो हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग जब सुनेगा ना एक सर रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, मत करो ऐसा। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু না, নিজেরা আবার পড়ার সময় এগুলোই শুনবে, বলতে নিজেরা পড়ার সময় এইসব শুনবে। চুপ भाई मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी चला गया, मैं क्या करूं? मैं सिखाऊं क्या? यस सर। এই বলছি যে ওই অ্যান্ড গেট দিয়ে তো এটা হচ্ছে না, তো ইনপুট দিচ্ছি হচ্ছে दिखा না। अपना स्क्रीन, शेयर अपना कर स्क्रीन दिखा। रुक रुक, देख दिखा रहा है। वन कर तो पहले, दोनों को वन कर, डबल क्लिक कर। कहाँ पर वन हुआ? अरे ये तूने लगाया क्या है? ये तो दो बीट Bit स्विच dis- है, ये बीट डिस्प्ले है। बिट डिस्प्ले लगाया है कि डिजिटल डिस्प्ले लगाया? अच्छा बिट डिस्प्ले ये। लेकिन कनेक्शन And- लिया एक से एक अरे किया रन तो connection। कर, ऊपर से रन कर, ओ रन कर भाई, ऊपर से ग्रीन, उसमें रन कर, ग्रीन बटन है देख, ग्रीन। उसके साइड हाँ? में जा, साइड में लेफ्ट 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 अरे लेफ्ट नहीं, लेफ्ट हाँ लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट, ये वहाँ से ये ऊपर अच्छा ये वाला। ओ,
ठीक है। হ্যালো, इंटीग्रेट कैसे करूँ? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? हाँ सर। বড় প্রবলেম হ্যাঁ হচ্ছে। স্যার। এরকম প্রবলেম হয়? আমি তো এই প্রথম দেখছি। ডিসগাস্টিং। ওকে, আমি প্রেজেন্ট করছি, একবার দেখে নাও। যেটা বোঝার সেটা আগে বুঝে নি, তারপর আমরা প্রেজেন্ট করবো, কাজটা করবো, প্র্যাকটিক্যাল কাজটা করবো। আচ্ছা, আমরা আগে দেখে নিই কতগুলো জিনিস। আমরা আগে দরকার হলে ন্যান্ড গেটটা আমি করব, নর গেটটা তোমরা করবে। আমি কিন্তু নর গেটটা দেখবো, আজকেই করবে তোমরা নর গেটটা। আমি দেখবো নর গেটটা তোমরা করতে পারছো কিনা। ওকে, একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো তুমি বা আমি আছি অ্যাকচুয়ালি লাইনে, তাহলে বুঝতে পারছি না, আমি খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। ओके सर। ओके, अच्छा देखो, আমরা বলি যে नैंड गेट বা नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है। क्यों है? क्योंकि नैंड गेट से हम कोई भी एक्सप्रेशंस, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशंस हम बना सकते। दैट मीन्स हम चाहते क्या, नैंड गेट से एंड गेट भी बना सकते, नॉर गेट भी बना सकते, नॉट गेट भी बना सकते, नैंड गेट से हम और गेट भी बना सकते। तो हम लोग देख लेते हैं नैंड गेट से कैसे नॉट गेट बनाते हैं। तुम लोग देखते हो ये वाला जो चीज है, ये नॉट गेट का सिंबल है। कोई भी एक इनपुट तुम दोगे तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट मतलब तुम 1 दोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 दोगे तो 1 हो जाएगा। तुम बनाना चाहते हो ये जो चीज है, ये नैंड गेट से तुम बनाना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? तो पहला वाला ये चीज देख लो, हम चाहते क्या, ये ए बार आए, हम ए इनपुट दे तो ए बार आए। सो ए बार को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डॉट ए, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम्स है। ये वाला थ्योरम्स हमने यहाँ पे दिया, हम बोले ये जो थ्योरम्स है ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ है। तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स है एक्स, तुम एक्स प्लस एक्स करोगे तो एक्स ही आएगा। क्यों? सपोज एक्स का वैल्यू 0 है, तुम 0 प्लस 0 लिखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तुम 1 प्लस 1 लिखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। क्योंकि ऑन, दो चीज ऑन है मतलब ऑन ही तो है, दो चीज ऑफ है मतलब क्या? ऑफ ही तो है। यहाँ पे तुम लिखो, तुम एक्स इंटू एक्स करना चाहते हो, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू जब 1 होगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, 0 इंटू 0 0 ही होगा। इसीलिए दोनों एक ही वेरिएबल ऐड हो और मल्टीप्लाई हो, उसका वैल्यू सेम ही होगा। दैट मीन्स हम ए को, ये वाला जो ए है, इस ए को हम ए इंटू ए कर सकते हैं। এখন প্রশ্ন হলো, the questions may come, why we actually write a dot a? Basically thing is that the NOT gate have only one input, but we know that any NAND gate must have at least 2 input. That means तुम्हें एक सिग्नल को दोनों इनपुट पिन में देना है। दैट मीन्स एक ही सिग्नल को तुमको दोनों इनपुट पिन में देना है नैंड गेट के लिए। इसीलिए कोई भी ए को हम ए और ए, दो ए में दे रहा है, इसीलिए ए को हम ए डॉट ए में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखो, बोलो कोई डाउट है क्या? दे बोलो। আচ্ছা ঠিক আছে। ठीक है, तो देखो हम ए में ए को दो, আরেকবার বলুন কি বলেন? দেখো আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, আমরা জানি কি না, ইনপুট নট গেটে যেটা রয়েছে, নট গেটে কেবল একটা ইনপুট হয়, কিন্তু আমরা জানি যে ন্যান্ড গেট বলো, মানে নট गेट ছাড়া বাকি যে কটা গেট আছে, किसी भी गेट में एटलीस्ट 2 इनपुट होना जरूरी है। 2 से ज्यादा हो सकता है बट एटलीस्ट 2 होना जरूरी है।
दैट मीन्स हम चाहते क्या, ये जो नॉट गेट है, ये नॉट गेट को हम एंड गेट, नैंड गेट से बनाए। दैट मीन्स ये एक वाला जो इनपुट है वो दो इनपुट में कन्वर्ट हो जाए। कैसे? मेरे पास तो एक ही सिग्नल रहेगा, सो एक सिग्नल को हम दो पिन में देंगे, दो पिन मतलब दो इनपुट पिन में देंगे नैंड गेट वाला में। सो दैट मीन्स दो इनपुट पिन में आएगा मतलब क्या, ए को हम दो इनपुट पिन में डिवाइड कर रहे हैं, ए हो रहा है, दो ए आ रहा है, স্যার इसीलिए हम একটা কথা ছিল স্যার, हम्म বলছি স্যার এখানে মানে দুটো পিনে যে এক সেম সিগন্যাল দেবো তো স্যার মানে এটা কি ওই মানে এখানে নেগেটিভ পজিটিভ বলে কোনো কিছু নেই তো? এখানে নেগেটিভ পজিটিভ বলে কিছু নেই। এখানে যেটা রয়েছে একটা ইনপুট পার্ট রয়েছে, মানে ইনপুটের দিকে চিপ রয়েছে, মানে লেগ রয়েছে, আর একটা হচ্ছে আউটপুটের দিকের লেগ রয়েছে। ইনপুটের দিকের লেগ যেটা, সেটাতে আমি একদিকের তারের ইনপুট গুলো বুঝবো, আর যেটা আউটপুটের দিকের লেগ রয়েছে সেখান থেকে আবার তার আমার আউটপুট বিটে দেবো। এখানে আদারওয়াইজ কোনো গ্রাউন্ড সেকশনস বলে কিছু নেই, যেটা তোমরা চিপে করো, যে একটা গ্রাউন্ড সেকশন করে দিলাম যে চিপটা জ্বলবে না, কিন্তু সেটা একটা হার্ডওয়্যার চিপে হয়। যেহেতু আমরা সফটওয়্যার চিপে রয়েছি, আমরা ধরে নিচ্ছি দিস চিপ ইজ অলরেডি ইন গ্রাউন্ড সিচুয়েশন। বুঝতে পারলে? এবার নেগেটিভ পজিটিভের ওই পজিটিভ ভোল্ট মানে আমরা 5 ভোল্টে কাজ করি সেরকম ব্যাপার না কিন্তু, ঠিক আছে? এটা একটা সিমুলেটর, তো হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে যে প্রবলেম যেগুলো আমরা করি, যতটা স্পেসিফিকেশনস আমরা করতে পারি, এখানে ধরে নিচ্ছি যে কিছু স্পেসিফিকেশনস ওরা অলরেডি করে দিয়েছে, বাকি কাজটা আমাদের করতে হবে। হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে কি হতো, আমাদের একটা কম্পোনেন্ট দিতে হতো, আমাকে কিন্তু সবকিছু মাথায় রাখতে হতো। যদি আমি গ্রাউন্ড না করতে পারি তাহলে কি হবে না, ইলেকট্রিক সাপ্লাই যদি ভোল্ট বেড়ে যায় তাহলে চিপটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার জন্য আমরা গ্রাউন্ড সেকশনস রাখি এবং আমরা ভোল্ট তাকে মেজার করে 5 ভোল্টে রাখার চেষ্টা করি। এখানে এইরকম কিছু নেই। এখানে আমরা যেটা করব, সিমুলেটরটা অনলি ইটস ফর ডিজাইনিং পারপাস। ওকে স্যার, ঠিক আছে? এবার ডিজাইনিং করে যখন তুমি এটাকে ব্রেডবোর্ডে ফেলবে তখন ইমপ্লিমেন্টেশন হবে, তখন তোমাকে ওই জিনিসগুলোকে মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ আমাকে যেন গ্রাউন্ড করতে হয় ঠিকভাবে, তা না হলে কিন্তু ইলেকট্রিক সাপ্লাই বেশি হয়ে গেলে, 5 ভোল্টের বা তার থেকে বেশি হয়ে গেলে দেখা যাবে যে ওটা জ্বলে যেতে পারে, চিপটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বা এলইডি যদি থাকে এলইডিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেগুলো আমাকে মাথায় রাখতে হবে, ব্যাস। আদারওয়াইজ সেম। ঠিক আছে? আমরা ওখানেও যে চিপটা নেব, ধরে নাও আমার কাছে যদি ন্যান্ড গেটের কোনো চিপ থাকতো, তাহলে ন্যান্ড গেটের দুটো যে ইনপুটের লেগ থাকে সেই লেগেও কিন্তু আমরা সেম সিগন্যালকে দেবো। মানে সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি যে কোনো একটা যদি ন্যান্ড গেটের চিপ থাকে, 1 নম্বর আর 4 নম্বর এই দুটো লেগে আমি ইনপুট দিই, তাহলে বেসিক্যালি দ্য ইনপুট সোর্স উইল বি দ্য সেম সিগন্যাল, দ্যাট ইজ এ। From the same source we are actually connecting the chip pin 1 and pin 4। এখানে আমরা যেহেতু ন্যান্ড গেটের একটা মডিউল আছে বলেই করছি, কিন্তু পরে যখন আমরা বড় বড় চিপগুলোকে দেখবো, যেমন অ্যাডার, সাবস্ট্রাক্টর, কোডার, ডিকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার, কম্প্যারেটর, এগুলো চিপ অলরেডি ওরা দিয়ে দিয়েছে। সেই চিপগুলোতে আমরা দেখবো যে কোন লেগে আমরা কি কি সিগন্যাল অ্যাড করতে পারি, যেরকম আমরা प्रैक्टिकली करी ऑफलाइने सेम तरीके से। सो मेरा जो मेन मोटो है ए को ए इन्वर्ट करना है। सो हम नॉट गेट से कर पाएंगे, एक ही इनपुट है, बट हम नैंड गेट से कर पाएंगे। मेरा 2 इनपुट का जरूरी है, 2 इनपुट के लिए हम एक ही सिग्नल को नैंड गेट का दोनों इनपुट सेक्शंस में ऐड कर पाएंगे। उसके बाद हम ए बार ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए डॉट ए ही होता है, इसीलिए हमने ये वाला जो ये सेक्शन सेग्रीगेट किया, क्योंकि ए डॉट ए जो है वो ए ही होता है, वो 2a नहीं होता, इसीलिए ये वाला सेक्शन हमने सेग्रीगेट किया। सो हम चाहते हैं कि ये वाला चीज आए। सो ये चीज हम प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, हम चले जाते ये वाला फोल्डर में, मेरा जो सिमुलेटर है, सिमुलेटर वाला फोल्डर COA लैब में है। उसके बाद देख लेते, हम डबल क्लिक करते हैं क्या होता है क्या नहीं।
मेरा भी आ रहा है डबल क्लिक करने के बाद, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो हम चाहते हैं क्या, ये जो चीज है ये हम बनाए, ये वाला कैसे बनाए, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैंने बना लिया। उसके बाद हम चाहते हैं क्या, नैंड गेट से हम नॉट गेट बनाए। तो हम लॉजिक में चले जाते हैं, बहुत सारा गेट, नैंड गेट, ये बेसिक कंपोनेंट्स है। हाँ बोलो बोलो। पीपीटी दिख रहा है आपका? पीपीटी दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है, ये वाला दिख नहीं रहा है। तो सिर्फ पीपीटी आ रहा है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ये आ रहा है, अभी आ रहा है। नहीं আমরা सर, দেখতে পাচ্ছি স্যার। तो लोग আর কেউ দেখতে পাচ্ছিস না? আমি তো দেখতে কেউ পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ না? কেউ দেখতে না? হ্যাঁ স্যার, আমি বেডবোর্ড দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ তো? আমি দেখতে পাচ্ছি। किसका प्रॉब्लम हो रहा है? मनीष सर। मनीष, मनीष मेरा करंट गया, करंट चले गए। ओके ठीक है, हम क्या बनाना चाहते हैं, नैंड गेट से हम बनाना तो चाहते मैं हैं। तो स्टक हो गया easy था है। वहाँ पे सर, पीपीटी बस दिख रहा था। अभी ठीक दिख रहा है, ब्रेडबोर्ड दिख रहा है। ये ब्रेडबोर्ड नहीं है, बेसिकली ग्रिड है, दिख रहा है, सॉफ्टवेयर वाला जो ग्रिड है, ये वाला ग्रिड है, दिख रहा है। ओके तो देखो, ये वाला हमने नैंड गेट ले लिया। उसके बाद हम इनपुट में चले जाते हैं, हम चाहते हैं क्या, ओके मेरा पास जो है बीट स्विच होना चाहिए, बीट स्विच दे दिया, और जो है हम बीट डिस्प्ले कर लेते हैं। उसके बाद एक कनेक्शंस आके ये कनेक्शंस बना लेते हैं। हम जानते हैं क्या, मेरे ये जो सिग्नल है ये ए है, सो नैंड गेट से दो सिग्नल, एटलीस्ट दो सिग्नल होना चाहिए। सो एक ही सेम इनपुट से हम एक सिग्नल से हम दो इनपुट जनरेट करते हैं, दो डिफरेंट पिन में दे दिया हमने, और एक जो आउटपुट है वो आउटपुट सेक्शंस में हमने दे दिया। सो ये वाला जो सर्किट हमने बनाया, ये नैंड गेट से हम नॉट गेट करना चाहते हैं, तो ये वाला 0 है। सो 0 मतलब नॉट गेट इन्वर्ट होके ये 1 आ जाएगा। सो हम रन कर लेते हैं, देखो 1 आ गया। सो हम चाहते हैं क्या, ये वाला 1 है वो हमको रन करे, वो ये वाला 0 हो जाए। सो ये वाला 0 हो गया, दैट मीन्स हम नैंड गेट से नॉट गेट बना सकते हैं। सो ये एक इन्वर्टर का सर्किट है, इन्वर्टर नॉट गेट से हम बना सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट से भी हम बना सकते हैं। सो नैंड गेट से हमने नॉट गेट बनाया। सो ये सर्किट डिजाइन है। बोलो, बेसिक चीज है, वेरी इजी, ये वाला वेरी इजी है। तब भी को किसी का डाउट है तो बोलो। हेलो, मैं लाइन में हूँ। हेलो হ্যাঁ স্যার। স্যার ওই একটা লাইন থেকে যে দুবার মানে দুটো লাইন করলেন, তার একবার দেখিয়ে দিন না। হ্যাঁ, মানে একটা ইনপুটকে ওই যে দুটো ইনপুট করে NAND গেটে ইনপুট করলেন, ওটা দেখান। হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও। দেখো আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, এটা আমি এগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি। আমি কি বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে আমার কাছে ইনভার্টার সার্কিট বানাতে হবে। ইনভার্টার মিন্স whatever the inputs you actually provide to the input sections of the inverter, it's actually give the invert sections. That means তুমি যদি 0 দাও, that's actually provide 1. If you give the signal 1, it's provide a 0, ঠিক আছে। বাট এই ইনভার্টার পোর্শনস থেকে I want to create it using the NAND gate, but NAND gate must have at least 2 input. That means एक इनपुट सिग्नल्स को तुमको इस पिन में दोनों इनपुट सेक्शंस में देना होगा। सो क्या करें हम, एक नैंड गेट ले लिया, एक इनपुट बिट ले लिया, एक आउटपुट बिट ले लिया।
एक कनेक्शन हमने ले लिया, ये कनेक्शन देख के सेम एक कनेक्शन को हमने इस पिन में ऐड किया, सेम इनपुट सिग्नल को हमने और एक पिन में ऐड किया। सो एक ही इनपुट हमने दो सिग्नल में कनेक्ट किया, दो पिन में कनेक्ट किया। सपोज इसका जो इनपुट सिग्नल का वेरिएबल्स है ए, सो ए डिवाइड होके दोनों पिन में जा रहा है, ए हो रहा है। हमने बोला ए प्लस ए ही होता है, ए डॉट ए ही होता है, इसीलिए कुछ डिफरेंस नहीं मिला। ये हमने डिवाइड करके दोनों पिन में दे रहा है, दोनों ही ए है। उसके बाद ये जो आउटपुट है, आउटपुट सेक्शन में हमने कनेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया ना, ट्रूथ टेबल चेक किया, वेरीफाई किया, ओके ये इन्वर्टर का सर्किट हुआ क्या नहीं। ये 1 है, हम चाहते कि रन करे तो इन्वर्ट होके 0 आ जाए। हम ये वाला 0 कर देते, ऑफ कर देते, हम चाहते हैं कि रन करे तो ये वाला 1 आ जाए, तो ये वाला 1 आ जाए। सो इन्वर्टर का जो ट्रूथ टेबल है वो ये सर्किट वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स नैंड गेट से हम नॉट गेट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिक थिंग्स। नेक्स्ट, पीपीटी दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है? यस सर, यस सर। ये बात देखो, हम चाहते हैं क्या, नैंड गेट से एंड गेट बनाए। यस सर, नैंड गेट से एंड गेट बनाए। हम क्या करें, मेरा जो सिंबल है एंड गेट का वो ए बी, दैट मीन्स ए एंड बी दो इनपुट सिग्नल है। हम दो इनपुट सिग्नल को एंड गेट में पास करें तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो ए बी आएगा, ये वाला ए बी आएगा। हम चाहते हैं क्या, ये जो सर्किट्स है ये सर्किट्स हम नैंड गेट से बनाए। सो हम कैसे बनाए, पहले हमको इवेलुएट करना होगा हम कैसे बना सकते हैं, उसके बाद हम सर्किट बनाएंगे। हम कैसे बना सकते हैं, मेरा पास जो आउटपुट आएगा ये ए बी आएगा। हम ए बी को ये ए बी बार बार, दैट मीन्स ए बी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट से बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, एक्स का कॉम्प्लीमेंट देन उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स ही होता है। क्यों, सपोज एक्स का वैल्यू 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट हमने किया वो 1 आ गया, उसके बाद उस 1 का फिर कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। सो हम कोई भी एक वेरिएबल का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करें तो वो चीज आ जाए। सो दैट मीन्स हम ए बी को ए डॉट बी डबल बार, दैट मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट से लिख सकते हैं। उसके बाद इस चीज देखो, ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए बी कॉम्प्लीमेंट देन उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर से बोल रहा हूं, ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट उसका फिर एक कॉम्प्लीमेंट। सो ए बी जो सिंगल कॉम्प्लीमेंट वाला चीज है, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, ए बी सिंगल कॉम्प्लीमेंट, ए बी सिंगल कॉम्प्लीमेंट जो चीज है वो सिंगल कॉम्प्लीमेंट को हम अगेन 2 में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, x डॉट एक्स एक्स ही होता है। सो ए बी सिंगल कॉम्प्लीमेंट को हम ए बी सिंगल कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी सिंगल कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं x मतलब x डॉट एक्स होता है। दैट मीन्स ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो सकता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट ये हो सकता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो ये जो ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट ये तो जा रहा है कहां से, ये सपोज ये ए बी से कुछ एक सिग्नल जा रहा है, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट से जा रहा है, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट से जा रहा है, उसके बाद ये एंड हो रहा है। दैट मीन्स क्या, उसके लिए हम कोई एंड गेट बनाया, बट एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स एंड गेट के साथ हमने कोई नॉट गेट बनाया, वो नैंड गेट आ गया। सो ये नैंड गेट का चीज है। वो ए बी जो आ रहा है, ये देखो ये जो ए बी आ रहा है ना, ये एक नैंड गेट का इनपुट पार्ट है, ये और एक नैंड गेट का इनपुट पार्ट है। दैट मीन्स ये ए बी जो आ रहा है, ये ए बी कोई भी एक ए और बी सिग्नल से आ रहा है, वो ए और बी सिग्नल यहाँ पे है, उस सिग्नल को हमने नैंड गेट में पास कराया, वो ए बी कॉम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा, ये वाला जो पहला वाला जो चीज दिखा रहा है, ये जो चीज है ये वाला चीज है। ए बी को हम नैंड गेट से पास किया,
वो मिला ए बी कॉम्प्लीमेंट। उस ए बी कॉम्प्लीमेंट को हमने दो इनपुट में डिवाइड किया, क्योंकि नैंड गेट का दो ही इनपुट होता है, एटलीस्ट दो इनपुट होता है। सेम इन आउटपुट सिग्नल जो ए बी कॉम्प्लीमेंट मिला यहां से, वो हमने दो इनपुट पिन में दे दिया, फिर एक नैंड गेट का। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। ए बी कॉम्प्लीमेंट जब नैंड गेट से पास किया, आउटपुट मिला। वो आउटपुट जो मिला वो कैसे मिला, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट मिला। वो ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी जो कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो छोटा चीज दिख रहा है इनटू करके, वो एक ही है, क्योंकि हमने पाया क्या, एक्स डॉट एक्स है। दैट मीन्स ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद टोटल का कॉम्प्लीमेंट था, इसीलिए और एक कॉम्प्लीमेंट आ गया, हमने बोला ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए बी होता है, क्योंकि एक्स डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स होता है। सो मेरा जो सर्किट रहा, ये वाला सर्किट हमने बनाया। क्लियर। सो नैंड गेट से हम एंड गेट बनाना चाहते तो ये सर्किट होना जरूरी है। दोनों नैंड गेट हमने दे दिया तो एक एंड गेट का सर्किट आ जाएगा। देख लेते हैं, चलो देखो ये क्या कर लेते हैं हम, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये ब्रास है, देखो ये वाला ब्रास है, क्लियर स्क्रीन है। क्लियर स्क्रीन करोगे तो चले जाएगा, बट तुम लोग सेव करोगे, तुम लोग ये फाइल सेव करोगे। सो फर्स्ट लॉजिक गेट में चले जाते, फिर नैंड गेट ले लेते, एक नैंड गेट ले लेते और एक नैंड गेट ले लेते हैं, और क्या ले ले, चलो हम ले लेते एक इनपुट सिग्नल ले लेते, क्योंकि नैंड गेट का दोनों इनपुट रहेगा, और एक बिट सिग्नल ले लेते और एक बिट डिस्प्ले हम ले लेते। उसके बाद कनेक्शंस आ गया। कनेक्शंस हम क्या करेंगे, ये से एक कनेक्शंस करेंगे, सपोज ये ए वाला कनेक्शंस है, और एक कनेक्शंस करेंगे ये वाला, ये बी वाला कनेक्शंस है। उससे क्या मिल रहा है, ए बी नॉट मिल रहा है। ये ए बी नॉट को हमने दो इनपुट पिन में, सेम पिन में कनेक्ट कर दिया, सेम पिन में हमने कनेक्ट कर दिया। सो यहां से भी ए बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यहां से भी ए बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ये ए बी कॉम्प्लीमेंट नैंड गेट में पास होगा तो क्या मिलेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट जो दिखाया, जो हमने दिखाया, हाँ ये भी मिलेगा सर। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट के टोटल कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स यहां से जो मिलेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही ए बी है। सो इसके आउटपुट हमने दे दिया। सो हमने इसमें, इसके बाद हम ट्रूथ टेबल चेक करेंगे। सो नैंड गेट से हम एंड गेट बनाना चाहते, सो हम 0 0 दे दिया, उसके बाद आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। एंड गेट का तो ताई है, 0 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। कोई भी एक इनपुट ऑन करो तो भी 0 मिलेगा, ये 0 करके ये 1 करो तो भी 0 मिलेगा, दोनों 1 करो तो 1 मिलेगा। सो ये एंड गेट की तरह ही काम कर रहा है। सो हम नैंड गेट से एंड गेट बना सकते हैं। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर नो। ठीक है। उसके बाद और गेट, तुम ट्राई करोगे और गेट, हम लॉजिक बोल देते हैं, और गेट तुम लोग ट्राई करो, कोई भी एक ट्राई करो, ठीक है। तो बना लिया। और আমি और गेटটা বলে দিই, তারপর और गेटটা ट्राई करो। सपोज हम चाहते हैं क्या, नैंड गेट से और गेट बनाए। सो मेरा जो मेन सिंबल है और गेट का वो a प्लस बी है, বাট a প্লাস বি हम স্যার ক্লিয়ার কি করে করব? ক্লিয়ার করবে কি করে বলে দিচ্ছি। এই যে পুরোটা ধরে নেবে, সিলেক্ট করে নেবে, সিলেক্ট করার পর দেখো ক্লিয়ারের একটা অপশন আছে এখানে, ক্লিয়ার স্ক্রিন, দেখো ব্রাশ আছে, ব্রাশ, এই ব্রাশটা ক্লিয়ার করে দাও, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বাট তোমরা কিন্তু করে সেভ করবে, এগুলো অ্যাসাইনমেন্ট, কিন্তু আমি কিন্তু পরীক্ষার সময় সেই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেখবো, যা যা 20 খানার উপর অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্ট আমরা করব, প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু আমি দেখবো তোমরা করেছো। কিছু কাজ আমি দেবো, সেগুলো আমাকে দেখাতে হবে যে আমি কাজগুলো করেছি, শুধু আমি করে দিলে হবে না, শিখতে পারবে না। ठीक है, তাহলে আমার मेन काज होच्छे कि a प्लस बी बनाना है। सो a प्लस बी हम कैसे बनाएंगे, देखो मेरे पास दो इनपुट है, a एंड b दो इनपुट है।
हम दो इनपुट को पहले नैंड गेट से दे देते, नैंड गेट से, नैंड गेट से देखो ये वाला नैंड गेट से हम दे देते, दोनों इनपुट एक ए का एक सिग्नल दोनों इनपुट पिन में दे देते, बी एक सिग्नल है बी का भी दोनों इनपुट से दे देते हैं। सो ये यहाँ पे ए बार मिलेगा, ये यहाँ पे बी बार मिलेगा, देखो यहाँ पे ए बार मिलेगा, यहाँ पे बी बार मिलेगा। ये जो ए बार बी बार मिल रहा है वो ए बार बी बार फिर से हम नैंड गेट में इनपुट होके दे रहे हैं, इनपुट पिन में दे रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो ए बार है ये नैंड गेट का इस पिन में जा रहा है, इसमें जो बी बार मिल रहा है ये ए नैंड गेट का इस पिन में मिल रहा है। सो दैट मीन्स मेरे पास जो मिल रहा है ए बार डॉट बी बार मिल रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट नैंड गेट हमने दे दिया। नैंड गेट मतलब क्या है, एंड प्लस नॉट। ताहले ए बार बी बार हम एक दे रहा है नैंड गेट के, पहला एंड होगा दैट मीन्स ए बार डॉट बी बार होगा, उसके बाद नॉट होगा, दैट मीन्स की टोटल जो आउटपुट मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ये बात देखो ए बार डॉट बी बार का फुल कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक डिमॉर्गन्स लॉ मेंटेन करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, देखो ए प्लस बी होल बार मतलब ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट बी का होल बार मतलब क्या, ए बार प्लस बी बार। देखो होल बार के तुम जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब भांगोगे क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट का बार हो जाएगा, और जो प्लस रहेगा वो डॉट हो जाएगा, डॉट रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो डॉट है तो प्लस हो गया और इंडिविजुअल कंपोनेंट का बार हो गया। सो ये डिमॉर्गन्स लॉ है। सो मेरे पास क्या है, ए बार डॉट बी बार का कॉम्प्लीमेंट है। सो ये वाला ये शूट कर रहा है, ये जो सेकेंड वाला हम दिखा रहा है माउस ओवर करके ये दिखा रहा है। सो ये क्या हो गया, ये जो हो गया ए बार डॉट बी बार, ये डबल चले आए, ये सिंगल होगा, ये डबल आ गया, ये सिंगल होगा, करेक्शंस कर लेना, ये सिंगल होगा। ये ए बार डॉट बी, ए डॉट बी का होल बार मतलब क्या है, ए बार प्लस बी बार। दैट मीन्स मेरा जो मिलेगा यहाँ पे जो मिलेगा, देखो ए बार बार प्लस बी बार बार। ए बार बार मतलब क्या है, ए है, बी बार बार मतलब क्या है, बी है। दैट मीन्स एक और का एक्सप्रेशन मिल गया। सो इस तरीके इस सर्किट से हम नैंड गेट से और गेट बना सकते हैं। सो कोई भी एक हम ये बना के दिखाओ। मनीष तुम पहले बना के दिखाओ ये चीज। सर এটা কোথায় तो क्या बना है सर? স্যার 1 আর 0টা কোথায় একবার দেখিয়ে দিন না। 1 আর 0টা কোথায়, ওই যে এতে দেবো যেটা ইনপুট হিসেবে দেবো, এটা দেখতে পাচ্ছি না। এই যে এ আর বি এইটা ওখানে না, আপনি সার্কিটে হ্যাঁ সার্কিটে হ্যাঁ 1 আর 0টা কোথায়, সেটা আমি তোমাদের করতে দিয়েছি, আমি তখন বলবো। কেউ একজন প্রেজেন্ট করো, আমি তারপর বলে দিচ্ছি। হয়ে গেছে মানে ওই 1 আর 0 প্রেজেন্ট। আচ্ছা তুমি শেয়ার করো, আমি বলে দিচ্ছি। তুমি শেয়ার করো, আমি বলে দিচ্ছি। তুমি শেয়ার করো, আমি বলে দিচ্ছি। দাঁড়াও আমি আগে শেয়ারটা বন্ধ করি। তুমি আগে আমি শেয়ারটা বন্ধ করি। कौन कर रहा है, विभू कर रहा है क्या? যে করেছো, বিভু করেছো? বিভু যদি করো আমাকে একবার দেখাও। যেই করেছো আমাকে দেখাও, আমি বলে দিচ্ছি। করেছি, আমি বলে দিচ্ছি। তুমি প্রেজেন্ট করো, আমি বলে দিচ্ছি, সব বলে দিচ্ছি। আমি নিজের হাতে কিন্তু তোমাদের ধরে ধরে করাবো, আমি সব করবো না, কিন্তু আমি দেখবো তোমরা কতটা করছো প্রতিদিন, নাহলে হবে না। কি হচ্ছে প্রেজেন্ট হচ্ছে না, যা ভুল হবে ঠিক হবে, এখানেই ঠিক করিয়ে নেবো। স্যার দেখতে পাচ্ছেন প্রেজেন্ট এখনো হয়নি বাবা, আরেকবার প্রেজেন্ট হয়নি, এখনো আসেনি আমার কাছে। প্রেজেন্ট করেছো? প্রেজেন্ট তুমি করেছো? হ্যাঁ স্যার প্রেজেন্ট করেছি, এখনো আমার কাছে আসেনি বাবা। मुझे भी नहीं दिख रहा है। আরেকবার প্রেজেন্ট मनीष तैयार है ना? उसके बाद करना होगा, उसके बाद करना होगा। बना लिया हूं सर। ओके बना दिया, ओके ठीक है। राजस्वी भी तैयार है ना? সেকেন্ড রুটে বলেছিলেন স্যার। আসছে না বাবা, তোমার স্ক্রিন আসছে না। স্যার নিচে প্রেজেন্ট নাও তো ক্লিক করব তো? হ্যাঁ প্রেজেন্ট নাও করো। এরপর দেখাচ্ছে ইওর এন্টার স্ক্রিন, এই উইন্ডো এন্টার স্ক্রিন দিয়ে দাও, এন্টার স্ক্রিন করো, এন্টার স্ক্রিন করে শেয়ার করে দাও, এন্টার স্ক্রিন করে শেয়ার করে দাও। শেয়ারের এটাই তো মানে ইয়ে হয়ে আছে আপনার। তুমি আগে এন্টার স্ক্রিন করার পর যে স্ক্রিনটা পেয়েছো সেখানে ক্লিক করো,
দেখো একটা ছোট স্ক্রিন আসছে, সেখানে ক্লিক করো আগে, তবে শেয়ার আচ্ছা অপশনটা আচ্ছা, হ্যাঁ এবার পেয়েছি। পেয়েছো, এবার শেয়ার করো। আচ্ছা হ্যাঁ দেখাও দেখাও। না এটা আচ্ছা। নয়, এটা নয় তো, সে কেটে তুমি দিয়েছে তো দেখেছি। বিট ডিসপ্লে দাওনি, বিট ডিসপ্লে করে ফেলেছো, মানে না স্যার, সিঙ্গেল বিট করবে। না স্যার এটা কেটে গেছে বোধহয়, হয়। ওকে ঠিক আছে, এটা মনীষ একবার দেখাও। ঠিক আছে তুমি অফ করো, মনীষ করেছো, মনীষেরটা দেখে নাও। सर क्या दिखा सर, नैन या नॉर? लास्ट वाला जो है, और वाला नैंड गेट से और किया है, नैंड गेट से और किया है? यस सर। वो दिखाओ। प्रेजेंट नहीं हुआ मनीष? यस सर कर रहा हूँ सर। तो आया? आ रहा है। हाँ ये लास्ट वाला लेफ्ट वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो यस सर, यस सर। স্যার আমি ওটাই করেছিলাম, কিন্তু 10 কোথায় স্যার? 10 सर नॉर गेट देखो, का भी दिखाऊं क्या सर? ये चेंज करके दिखाओ, इनपुट वाला स्टेट चेंज करके दिखाओ। नीबू देख लो, 1 1 पहला 1 1 मिल रहा है, एंड गेट 0 1 1 ही मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है। ठीक है, कोई भी एक दो तो 1 1 मिलेगा। तो इस गेट से, इस स्विच से तुम चेंज कर सकते हो। ये जो सिग्नल है वो चेंज कर रहा है 0 1, वो इनपुट सिग्नल वाला चीज है। ठीक है, सो सी তুমি একটা কাজ করো, তুমি আমাকে नॉर गेट में इनपुट ट्रू होगा। এই সরি সর ফোন থেকে কানেক্ট করলাম। रुको मनीष, मनीष क्या Yes, बोलो sir. बोलो, क्या बोलना चाहते हो बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इनपुट ट्रू रहता है तो आउटपुट भी ट्रू आता है और गेट का। तुम और गेट बना रहे हो तो 0 0 1 1 आएगा, ओनली 0 0 से क्या आ रहा है, 0 0 से क्या आ रहा है? हाँ ठीक ही तो है, और गेट तो 0 0 से ही 0 आता है, और कोई भी एक बीट 1 हो जाएगा तो और गेट से 1 ही आता। तो ये तो और गेट का है, ये वाला तो और गेट का है। हाँ ठीक है, तो सर्किट तो ठीक है। ওকে রাজশ্রী, তুমি নর গেট বানাতে পারবে? নর গেট থেকে নট গেট বা নর গেট থেকে এন্ড গেট, যেটা তোমার সুবিধা। স্যার নর গেট থেকে এন্ড গেট? হ্যাঁ নর গেট থেকে এন্ড গেট রাজশ্রী বানাও। আচ্ছা সুদীপ্ত তুমি নর গেট থেকে অর গেট বানাও। আর রোহিত তুমি নর গেট থেকে নট গেট বানাও। স্যার আমি তো পারবো না স্যার। তুমি তিনটেই বানিয়ে দিয়েছো? আচ্ছা ওকে, কোনো একটা সার্কিট আমাকে চেঞ্জ করে দেখাও যে আউটপুট মানে ভ্যালিডেট করছে। হ্যাঁ শুনছি স্যার। ওকে ঠিক আছে রোহিত, তুমি ছেড়ে দাও, করে দিয়েছে রাজশ্রী অলরেডি, ছেড়ে দাও। আমি তো পারবো না। তুমি বানাও, বাড়িতে বানাও, কিন্তু হ্যাঁ দেখো যেটা বানাচ্ছে একটু চোখে রাখো। আমিও ফোন দিয়ে করছি, ও তুমিও ফোন দিয়ে করছো? আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে মিউট করে দাও।
ওকে, ঠিক আছে, তাহলে বাকিরাও কিন্তু একটু করে নেবে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের বেসিক পার্টটুকুনি কমপ্লিট হয়ে গেল। আমরা যে ন্যান্ড গেট, নর গেট, ইউনিভার্সাল গেট বলেছি তোমরা বানিয়ে ফেলেছো, ব্যাস, ভেরি গুড। এবার আমরা চলে আসছি অ্যাডার সেকশনে। সেখানে আমি অ্যাডারে আমরা সবকিছু শিখবো, প্রচুর কিছু অ্যাডার শিখবো, হাফ অ্যাডার শিখবো, ফুল অ্যাডার শিখবো, হাফ অ্যাডার থেকে ফুল অ্যাডার কি করে ক্রিয়েট করে শিখবো, আমরা শিখবো প্যারালাল অ্যাডার কি করে তৈরি হয়, লুক অ্যাহেড ক্যারি অ্যাডার কি করে তৈরি হয়, কেন এগুলো খুব লাগবে আমাদের। সুতরাং অ্যাডার থেকে আমরা অনেক কিছু জিনিস শিখবো। আমরা আস্তে আস্তে অন্ততপক্ষে আজকে অ্যাডার, হাফ অ্যাডারটা আমরা আজকে শিখবো। हाफ एडर ধরে নিচ্ছি हाफ एडर का आइडिया तुम्हारे पास है, हाफ एडर का आइडिया है तुम्हारे पास, क्या है हाफ एडर? हो रहा है, हम फिर से बता देते और दिखा देते कैसे हम एडर सर्किट बनाएंगे लॉजिक गेट से। उसके बाद हम दिखाएंगे एडर सर्किट हम हाफ एडर वाला चिप से कैसे बनाएंगे, क्योंकि अब हम जब जो चीज यूज करेंगे वो चिप यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक वाला जो पार्ट्स है वो हो गया, गेट वाला जो चीज है वो हो गया, ठीक है? सो अगेन मैं मेरा स्क्रीन जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं। ओके सर, चले जाते हैं एडर सेक्शंस में। ये वाला हो गया, ये वाला ओके, चले आओ। दिख रहा है तो सब कुछ दिख रहा है। हम क्या चाहते, हम चाहते क्या? यस सर। दो नंबर का एडिशन करें। एक्चुअली दो नंबर मतलब क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ बीट्स का एक नंबर होता है। बहुत सारा बीट्स लेके हम एक नंबर क्रिएट करते, बाइनरी नंबर। अगेन कोई डेसिमल नंबर चाहते हैं तो क्या ना, डिफरेंट डिजिट हम कलेक्ट करके एक नंबर जनरेट करते। बट whenever you consider with the binary number, there are several bits present in a binary number. हम हाफ एडर से कोई भी दो बीट, ओनली 2 बीट का एडिशन कर सकते हैं, 2 बीट, 2 से ज्यादा नहीं। बट हम चाहते तो 2 नंबर का एडिशन कैसे कर पाएंगे? सो हम चाहते क्या, मेरा जो नंबर है वो 4 बीट का नंबर है, 2 4 बीट का नंबर है, हम चाहते 2 4 बीट का नंबर हम एडिशन कर पाए। सो इसीलिए वो चारों हाफ एडर को हमको कैस्केडिंग में, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव में लगाना होगा। उसके बाद ही हम टोटल 2 4 बीट नंबर का एडिशन कर पाएंगे। सो पहले हमको 2 बीट का एडिशन आना जरूरी है। तो हम चाहते क्या, 2 बीट का एडिशन, सो इसीलिए हम लोग हाफ एडर का यूज करते हैं। हम चाहते क्या, 3 बीट का, 2 बीट है और 1 बीट का एडिशन हो। सो हम क्या कर पाएंगे, इसीलिए हम हाफ एडर से कुछ नहीं कर पाएंगे, हम फुल एडर यूज कर पाएंगे। सो 2 बीट का एडिशन होने के लिए हाफ एडर का जरूरी है, 3 बीट का एडिशन होने के लिए फुल एडर का जरूरी है। बट हम कोई 2 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं, 2 नंबर, बीट नहीं, 2 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा हाफ एडर हम ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम पाएंगे उसका रिजल्ट। और बहुत सारा फुल एडर हम कलेक्ट कर पाएंगे, ऐड करेंगे, क्यूमुलेटिव करेंगे, उसके बाद ही हम रिजल्ट पाएंगे। सो पहले हम जो जानना चाहेंगे वो हाफ एडर का सर्किटरी क्या है, उसका लॉजिक क्या है, कैसे 2 बीट का एडिशन हो रहा है। हम 2 बीट का एडिशन कर पाएंगे तो हम 10 बीट का भी एडिशन कर पाएंगे, 100 बीट का भी एडिशन कर पाएंगे। चीज सेम ही है, जब ओनली एडर को एडिशन करना पड़ता है, एडर को सर्किट में एडिशन करना पड़ता है, बट लॉजिक जो है सेम ही है। सो क्या है, देखो हम चाहते हैं क्या, ये जो 2 बीट है, ये 2 बीट का एडिशन करें, 1 0, ये 1 0 का हम एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 क्या है, 1 शाम है। देखो
कोई भी दो चीज, कोई भी दो नंबर का हम एडिशन करेंगे तो जो दो चीज मिलता है, एक मिलता है समेशन का रिजल्ट और एक मिलता है जो कैरी हुआ। सपोज हमने चाहते हैं क्या डेसिमल नंबर में 5 और 6 का हम एडिशन करें, तो क्या होगा 6 और 5 हम मिले के 11 होता है। 11 मतलब क्या, एक और एक कैरी होता है। 11 मतलब एक का सम बीट हो रहा है और एक कैरी होता है। वो जो कैरी वाला चीज वो सेकेंड नंबर में ऐड होता है, सेकेंड डिजिट में ऐड होता है। सो यहाँ पे भी जब बाइनरी नंबर में हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, पहला जो नंबर मिलेगा वो सम है, जो कैरी रहेगा वो कैरी लेफ्ट साइड का, उसका जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड का नंबर से ऐड हो जाएगा। सो पहला वाला देखो 1 प्लस 1 और 0, ये 1 0 का एडिशन हम करेंगे तो मेरा जो सम है सम 1 मिलेगा, कैरी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैरी नहीं हो रहा है। 1 प्लस 1 मत याद रखना, 1 प्लस 1 जब होगा सो 1 प्लस 1 के लिए 0 समेशन होगा, 1 कैरी होगा। ट्रुथ टेबल देखो, ये 1 1 जब हम एडिशन करेंगे, यहाँ पे 1 1 जब एडिशन करेंगे, सम जब होगा 0 होगा और जो कैरी होगा वो 1 होगा। তুমি যদি এটাকে ডেসিমালে ফেলে দাও, দেখো 1 का डेसिमल 1 ही होता है, 1 का डेसिमल 1 ही होता है। 1 1 डेसिमल नंबर में हम ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। 2 का बाइनरी क्या है, 1 0 ही तो 2 का बाइनरी है। इसीलिए हम ये एडिशन बाइनरी में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये टेबल याद रखना। 1 प्लस 1 में हम जब एडिशन करेंगे तो सम वाला चीज में 0 आएगा, कैरी में 1 आएगा। 1 0 हम एडिशन करना चाहते तो सम में 1 आएगा, कैरी में 0 आएगा। 0 1 का हम एडिशन करना चाहते तो क्या आएगा, सम में 1 आएगा, कैरी में 0 आएगा। दो 0 नंबर का एडिशन कर सके तो क्या होगा, सम में भी 0 आएगा, कैरी में भी 0 आएगा। सो इस तरह से हम इस नंबर का एडिशन करना चाहते तो क्या आएगा, 1 0 1 0, दैट मीन्स क्या है 1 0, इस रो देखो 1 0, सम क्या आया, सम आया 1, कैरी आया 0, इसीलिए देखो रिजल्ट हमने दे दिया 1, कैरी 0। 0 मतलब 0 तो कहाँ पे एडिशन नहीं होगा। उसके बाद देखो ये वाला 1 1 सेकेंड, ये एलएस भी है, ये एमएस भी है। राइट साइड वाला जो बीट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है और लेफ्ट वाला जो चीज है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है। हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट से हम ट्राई करते, कैलकुलेट करते, उसके बाद जो कैरी मिलता है वो ठीक पहला वाला जो सिग्निफिकेंट बीट है उसका लेफ्ट वाला जो सिग्निफिकेंट बीट है उससे हम ऐड कर देते हैं। बट पहला प्रथम जो लेफ्ट वाला जो मिला, राइट वाला जो मिला लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, उससे कुछ कैरी नहीं हुआ क्योंकि कैरी 0 था। 1 0 का एडिशन 1 हुआ, कैरी का 0 हुआ। कैरी 0 मतलब 0 एडिशन करने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए 0 एडिशन नहीं हुआ। उसके बाद देखो ये 1 1, ये 1 1 का जब एडिशन होगा तो सम क्या मिलेगा, सम 0 मिलेगा, वो कैरी होगा क्या, कैरी होगा 1, इसीलिए ये 0 आया, कैरी 1 हुआ, कैरी 1 हुआ। वो कैरी इस दो बीट में इस लेवल में ऐड होगा। इस 0 0 का समेशन क्या है, इस 0 0 का समेशन है समेशन 0, और एक 1 जो कैरी इस लेवल से हो रहा है वो लेवल यस से जोग होगा। सो क्या होगा, ऐड होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1 1 ही है, वो इसीलिए सम दिखा रहा है 1। उसके बाद इस तरह से तो कैरी 0 मिल रहा है क्योंकि 0 प्लस 1 का 1 समेशन है, कैरी तो 0 मिल रहा है। सो इसीलिए इस एमएसबी में कुछ बीट नहीं ऐड होगा। 1 प्लस 0, पहले 1 प्लस 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 में सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। देखो सम 1 दिखा रहा है, कैरी कुछ नहीं दिखा रहा है, कैरी 0 दिखा रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड का 0 का कोई मतलब नहीं है। सो ये बीट हमने आ गया। सो हम चाहते क्या, ये ओनली ये 2 बीट, ये नंबर का एडिशन करने के लिए ओनली एक एडर से नहीं होगा, मल्टीपल एडर होना चाहिए। बट हम चाहते हैं कि ओनली 2 नंबर का
2 बीट का एडिशन करे, ओनली 2 बीट का एडिशन करने के लिए हमें हाफ एडर यूज करेंगे। हम चाहते क्या 3 बीट का एडिशन करे तो फुल एडर का यूज करेंगे। सो ये एडर का ट्रूथ टेबल है। सो ये एडर का ट्रूथ टेबल से हमको इक्वेशंस जनरेट करना पड़ता है, बूलियन एक्सप्रेशंस जनरेट करना पड़ता है। कैसे करेंगे? पहला हमारा जो इक्वेशंस आएगा ये सम का इक्वेशंस आएगा, दूसरा जो आएगा वो कैरी का इक्वेशंस आएगा। सम का इक्वेशन कैसे आएंगे? देखो इस सम से ये जो कॉलम दिखा रहे हैं हम ब्राउज, हम लोग जो वो माउस ओवर कर रहा है ना, ये वाला जो सेक्शन है ये आउटपुट सम का सेक्शन है। ये सम वाले में से जो जितना पार्ट में 1 होगा ये पार्ट हम लेंगे। सो इस 1 के लिए इसका इनपुट का स्टेटस क्या था? A 0 था, B 1 था, दैट मीन्स A का कॉम्प्लीमेंट था, B का नॉर्मल B था, इसलिए हमने यूज किया क्या या A बार B। नेक्स्ट ये वाला जो 1 आया, इस 1 के लिए इसका इनपुट सेक्शंस में क्या स्टेटस है? A का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है 0, दैट मीन्स 1 मतलब A डायरेक्ट है, 0 मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट वाला चीज है, इसलिए B बार दिया। सो ये सम का इक्वेशंस हो गया। फिर चले जाते कैरी सेक्शंस में। कैरी सेक्शंस में एक ही 1 है। सो इस 1 के लिए क्या स्टेटस है इनपुट बिट का? A भी 1 है, B भी 1 है, दैट मीन्स A इंटू B। सो ये इक्वेशंस रहा, ये सम का इक्वेशंस रहा, ये कैरी का इक्वेशंस रहा। सो हम चाहते हैं क्या ये इक्वेशंस को हम लॉजिक गेट में इंप्लीमेंट करें। सो क्या होगा लॉजिक गेट में? चले जाते हैं। देखो लॉजिक गेट में हम इक्वेशंस में इंप्लीमेंट करें, ये बेसिक लॉजिक गेट्स है, ये एडर वाला लॉजिक गेट्स बेसिक लॉजिक गेट्स है। हम लॉजिक गेट से करें तो क्या होगा? हमने दे दिया देखो A बार B। हम चाहते हैं क्या A बार मतलब A हम नॉट गेट में यूज करेंगे, उसके बाद एक आउटपुट आएगा और A का जो सिग्नल है वो A सिग्नल इसमें डायरेक्ट जाएगा। फिर देखो B, इस B का जो सिग्नल है इस B यहाँ पे डायरेक्ट जाके एंड होगा, इस A बार जा रहा है और इससे B जा रहा है। सो ये जो एंड गेट है ये A बार डॉट B मिल रहा है, देखो A बार डॉट B मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखो एक बार A डॉट B बार कैसे मिल रहा है? ये जो A सिग्नल है ये A सिग्नल डायरेक्ट एंड गेट में जा रहा है और B बार मतलब B का एक नॉट गेट हमने बनाया, B बार मिला, वो B बार डायरेक्ट हमने एक एंड गेट में दे दिया। सो A डॉट B बार मिलेगा। उसके बाद मिडिल में प्लस है, प्लस मतलब क्या है? और गेट होना जरूरी है। सो इसका जो आउटपुट मिलेगा और इसका जो आउटपुट मिलेगा ये हम और गेट में दे दिया, वो और गेट ये चीज दे देता है। और देखो ये जो दे रहा है ना ये एक जोर का इक्वेशन है, तुम ये सर्किट ना बना के एक जोर गेट से भी तुम कर सकते हो, ये चीज तुम जोर गेट से भी कर सकते हो। जोर गेट का इक्वेशंस क्या है? हम जोर गेट का जो ट्रूथ टेबल देखे वो जोर गेट का देखो, ये ट्रूथ टेबल क्या मिल रहा है? ये जोर गेट है, ये देखो जोर गेट, हमने A और B 2 सिग्नल दिया, एक जोर गेट मिला, मेरा जो इक्वेशंस मिल रहा है देखो A B बार प्लस A बार B। सो ये जोर गेट का इक्वेशंस है। ये जोर गेट का इक्विवेलेंट जो सर्किट है ये सर्किट है, ये सर्किट ही हमने यहाँ पे दे दिया। तुम चाहते हो क्या ये सर्किट रिप्लेस करके एक जोर गेट भी तुम दे सकते हो, कोई बात नहीं। और जो कैरी वाला चीज है, कैरी वाला चीज क्या है? A इंटू B है। सो A और B जो सिग्नल है वो एक एंड गेट में पास करेंगे तो उसका आउटपुट मिलेगा। सो ये एक हाफ एडर का सर्किट है। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी कोई दिक्कत है तो बोलो। हेलो सर। हाँ सर बोल रहा हूँ कि मेरा तो इंटरनेट चला गया था सर, थोड़ा सामने वाला बता दीजिए स्टार्टिंग का। सामने कौन सा वाला बोलो? पहला वाला, ये वाला पार्ट? हाँ ये 1010 करके जो है लेफ्ट साइड में, ये देखो 4 बिट। ये टेबल याद रखना, टेबल याद रखना। क्यों? ये टेबल से एडर का सर्किट चलता है। मेरा पास जब दो बीट होगा, 0 2 बीट होगा, उस ये वाला ये भी जो 2 बीट होगा, सो 2 बीट का जब एडिशन करेंगे उसका सम 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा, क्योंकि हम 2 नंबर का जब ऐड करेंगे हमारा समेशन बिट भी मिलता है, एक कैरी बिट भी मिलता है। वो कैरी सेकेंड जो लेवल है
उस लेवल में ऐड हो जाता है, ठीक, उसका जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है उससे ऐड हो जाता है। उसके बाद जो 0 1 वाला इनपुट सेक्शन है, 0 1 को हम ऐड करेंगे तो समेशन में 1 आएगा, कैरी में 0 आएगा। 1 0 जब इनपुट मिलेगा, अगेन ये जब एडिशंस करेंगे तो समेशंस में 1 आएगा, कैरी में 0 आएगा। तुम दो 1 सिग्नल को एडिशंस करना चाहते हो तो क्या मिलेगा, सम में 0 आएगा, कैरी में 1 आएगा। सो इस तरह से ही काम करता है। इससे हम एक लॉजिक सर्किट बनाया, लॉजिक डायग्राम बनाया, इक्वेशंस बनाया। क्या कैसे बनाया, सम को फोकस करो पहले, सम में कौन सा पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये 1 के लिए इनपुट स्टेटस क्या है, ये इनपुट स्टेटस है, दैट मीन्स ए 0 है, बी 1 है, दैट मीन्स ए बार बी, दैट मीन्स ए बार बी। ये 1 के लिए इनपुट स्टेटस क्या है, ए 1 है, बी 0 है, दैट मीन्स ए बी वर। एंड जो कैरी सेक्शंस है, कैरी सेक्शंस का 1 पार्ट, ये पार्ट 1 है, उसके लिए जो स्टेटस पार्ट है वो स्टेटस पार्ट क्या है, A1 B1, दैट मीन्स A into B। सो दिस इज द बुलियन इक्वेशन, दिस इक्वेशन से हम सर्किट बनाएंगे। सो ये सर्किट हमने बनाया। तो ये सर्किट हम चाहते हैं क्या, इससे बनाए। सो हम क्या करेंगे, जोर गेट से बना सकते हैं। हमने बोला जोर गेट से बना सकते हैं, और वो जो डायग्राम हमने बनाया वो इक्विवेलेंट ऑफ द जोर गेट। सो कैसे बनाएंगे हम एक जोर गेट ले लेते हैं, ये वाला जोर गेट हमने ले लिया। जोर गेट का बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, 2 इनपुट बनाएंगे, और 2 इनपुट के लिए हमने क्या लिया, 2 इनपुट बिट के लिए हमने एक इनपुट बिट यहाँ पे ले लिया, और एक इनपुट बिट हमने यहाँ पे ले लिया। So each and every half adder circuits must have 2 input. So this is a 2 input bit, and obviously after XOR operations I am actually getting the summation part. So summations part के लिए हम एक चीज ले लेते हैं, ये आउटपुट सेक्शन। So ये वाला जो मिला ये summations के लिए मिल रहा है, हम चाहते हैं कि उसका कैरी भी मिले। सो कैरी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मेरा जो सर्किट बता रहा है, कैरी के लिए हम एक एंड गेट यूज करेंगे। सो एंड गेट के लिए हम एक एंड गेट ले लेते, यहाँ पे एक एंड गेट ले लेते, और एंड का जो आउटपुट मिलेगा, दैट मीन्स जो कैरी मिलेगा, जो कैरी के लिए हम और एक डिस्प्ले बिट ले लेते, बिट डिस्प्ले लेते, वो कैरी के लिए यूज होगा। दैट मीन्स ये वाला जो बिट है वो सम के लिए यूज होगा, ये वाला जो बिट है वो कैरी के लिए यूज होगा। उसके बाद हम कनेक्शन कर लेते हैं, ये वाला एक कनेक्शन हो गया, सॉरी ये कनेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये वाला एक कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, उसके बाद ये कनेक्शन होगा, ये समेशंस के लिए कनेक्शन होगा, और ये कनेक्शन क्या होगा, और एक कनेक्शन यहाँ से एक कनेक्शन होगा, यहाँ से कनेक्शन होगा, उसका जो आउटपुट आएगा यहाँ से आउटपुट आएगा। ये एक हाफ एडर का सर्किट है। इससे इस जोर गेट से ए बार बी प्लस बी बार ए, दैट मीन्स एक समेशंस वाला सम वाला पार्ट निकाल के आ जाएगा, और ए बी से हम कैरी वाला पार्ट निकाल के आ जाएगा। सो हम चेक कर लेते, हम 0 0 रहेंगे तो सामने सम बीट, ये वाला सम बीट, ये वाला कैरी बीट, सम बीट भी 0 रहेगा, कैरी बीट भी 0 रहेगा। देख लेते, देखो सम बीट 0 रहेगा, कैरी बीट 0 रहेगा। 0 1 कोई भी एक सेक्शन 1 कर दिया तो क्या रहेगा, ये सम बीट 1 आ जाएगा, कैरी बीट 0 आ जाएगा। देखो सम बीट 1 आ रहा है, कैरी बीट 0 आ रहा है। ये वाला 0 करके ये वाला 1 करे तो क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा, ये सम भी 1 आ जाएगा, कैरी भी 0 आ जाएगा। देखो सम 1 आ रहा है, कैरी 0 आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये दोनों 1 कर देते, दोनों 1 करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो सम बीट आएगा, ये सम बीट 0 आएगा, कैरी बीट 1 आएगा। सो सम बीट 0 आ रहा है, कैरी बीट 1 आ रहा है। सो ये ट्रूथ टेबल को ठीक तरह से प्रूफ कर रहा है, दैट मीन्स ये सर्किट ठीक है, ये एक हाफ एडर का ही सर्किट है। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो। हेलो, नो सर। ठीक है। सो हम चाहते हैं कि ये तो लॉजिक गेट से हो गया, हम चाहते हैं कि ओके हम एक पिन डायग्राम से यूज करें। सो पिन डायग्राम के लिए मेरे पास एडर का सर्किट है, देखो मेरे पास एडर है, हाफ एडर हम यूज करना चाहते हैं तो हाफ एडर हम यूज करेंगे।
बट ये जो चीज है ये एक चिप है, ये एक चिप है, ये चिप से हम कैसे कर पाएंगे देख लेते हैं। चिप वाला, सो इस चिप में देखो, इस चिप में ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, वो ऊपर वाला सेक्शन इनपुट सेक्शन है और नीचे वाला जो सेक्शन है वो आउटपुट सेक्शन है। और देखो ये एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल मतलब है इस पिन से हम पिन काउंट करेंगे। ये पिन 1 है, ये पिन 2 है, पिन 3 है, पिन 4 है, उसके बाद ये पिन 5 है, ये पिन 6 है, पिन 7 है, पिन 8 है। सो एंटी क्लॉक वाइज हम पिन काउंट करेंगे। ये एक आईसी चिप है, आईसी चिप का इस पिन से हम हाफ एरर वाला काउंट करेंगे। पिन 1 एंड पिन 4 में हम आउटपुट देंगे और पिन 5 और पिन 8 में हम इनपुट देंगे। सो देखते हैं कैसे चलता है। सो हमने इनपुट सेक्शंस में चले आए, बीट सेक्शंस, ये वाला एक बीट दे दिया और एक बीट हमने यहाँ पे भी दे दिया। ओके चलो, दोनों बीट आ गए और मेरे पास दो आउटपुट आएगा। ये वाला जो आउटपुट है कोई भी एक कैरी के लिए आएगा और जो आउटपुट आएगा एक साम के लिए आएगा। ओके, हम कनेक्शंस टूल यूज कर रहे हैं, कनेक्शंस यूज कर रहे हैं। ये बीट हम एक में दे रहा है और एक हम 5 में दे रहा है, क्योंकि ये मेरा इनपुट सेक्शंस है। इनपुट पिन के लिए हमको 5 और 8 वाला पिन में ही देना होगा। और कैरी वाला ख्याल करना, एक पिन से जो आउटपुट आ रहा है वो कैरी का आउटपुट देगा, एक पिन से जो आउटपुट आ रहा है वो कैरी का आउटपुट देगा, साम का नहीं। आज जो 4 पिन से आ रहा है वो साम का आउटपुट देगा, कैरी का नहीं। ओके, सो देख लेते हैं, अभी एक बार देख लेते। वो 0 0 हमने दे दिया, ये 0 0 है, हमने दे दिया 0 0 0 0 करके हमने रन किया तो देखो 0 0 मिल रहा है। हमने कोई भी एक बीट को 1 कर दिया, उसके बाद हमने रन किया। सो देखो साम बीट 1 दिखा रहा है, कैरी बीट 0 दिखा रहा है। कैरी 1 से है, साम 4 पिन से है, 4 वाला जो पिन है पिन 4 से है। अगेन वाला ये 0 करके ये 1 कर दिया। सो अगेन वाला आउटपुट का कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 1 0 साम 1 है, कैरी 0 है। दोनों 1 कर दिया तो सामेशन 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। सो देखो सामेशन 0 आ गया, कैरी 1 आ गया। सो ये चिप जो है, ये चिप हाफ एडर का काम कर रहा है और मेरा जो लॉजिक डायग्राम है वो भी हाफ एडर की तरह काम कर रहा है। सो हम लोग जब काम करेंगे, बड़ा बड़ा सर्किट यूज करेंगे, सो हम चिप यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे। कि ये वाला यूज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बट इस चीज, ये जो सर्किट है, ये सर्किट इसमें है, सो हम ओनली ये वाला चिप को यूज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। सर इसमें न्यू फाइल कैसे बनाते हैं? ओके, न्यू फाइल कैसे बनाते हैं? ओके, ये चले जाओ, सेव करो, तुम्हारा रोल नंबर दो, से मेरा जो नाम है, से मेरा नाम एस के भी दे दिया, मेरा रोल नंबर से हमने 6 दे दिया, हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद बोल रहा है कहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं और तुम जो फोल्डर में सेव करना चाहते हो सेव फोल्डर में रहो, उसका नाम दे दो। हम यहाँ पे दे दिया हाफ एडर। ओके, हाफ एडर जाके सेव कर दो, सेव होगा, सेव करो तो सेव हो जाएगा। उस डेस्कटॉप में वो फाइल चले आएगा। देखो डेस्कटॉप में वो फाइल दिखा रहा है कि नहीं। देखो ये हाफ एरर वाला दिखा रहा है, ये हाफ एरर चले आए। वो अगेन ये हाफ एरर में तुम डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो सिमुलेटर में चले आएगा वो चीज। सिमुलेटर ऑन होना जरूरी है। सिमुलेटर ऑन करके तुम इस ओपन करके वो ये वाला ओपन करो, ये ओपन करके डेस्कटॉप वाला में से ये जो फाइल्स तुमने बनाया वो फाइल को चूज कर लेना। कौन सा फाइल बनाया हमने? हाफ एरर वाला, लॉजिक वाला। ये फाइल बना के ओपन कर लेना। सो देखो दिखा चले आएगा। तो इस तरह से तुम बना सकते हो, सेव भी कर सकते हो।
ठीक है। न्यू फाइल मतलब न्यू फाइल कैसे बनाएंगे इधर से? तुम जब बनाओगे न्यू फाइल यहाँ पे कोई ऑप्शन है? देखो कोई ऑप्शंस यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शंस नहीं है। तुम ये बना के सेव करो, सेव करने के बाद ये जो चीज है ये चीज वाला ब्राउज करो, माने इरेज कर दो, ये इरेज कर दो, इरेज करके बाद अगेन कुछ बना के सेव करो। ये वाला उस तरह सा एडिटर नहीं है जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक न्यू फाइल बनाएगा, तुम कुछ लिख पाओगे, ये नहीं है। ये एक सिमुलेटर है, कॉमन चीज है, कॉमन एक प्लेटफॉर्म है, तुम कुछ बना के सेव कर सकते हो और कुछ नहीं। यहाँ पे तो कुछ न्यू का ऑप्शंस देखिए नहीं दिखा रहा है, ये ओपन वाला सेव वाला ऑप्शन दिखा रहा है, कुछ न्यू का ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ओके सर। तो बोलो क्या इस पार्ट में कुछ डाउट है क्या? नहीं सर इसमें 1 कैरी है, कैरी तो 1 ही रहेगा। कोई भी तुम एडिशंस करो तो साम 1 होता है, कैरी 1 रहता है। फुल एडर भी तुम यूज करो, साम 1 ही रहता है, कैरी 1 रहता है, बट नंबर ऑफ इनपुट चेंज हो जाता है। फुल एडर में 3 बीट से हम ऐड कर पाएंगे और हाफ एडर से 2 बीट का हम ऐड कर पाएंगे, बट हम चाहते थे मल्टीपल नंबर का ऐड करें, दो नंबर का ऐड करें, दैट मीन्स मल्टीपल बीट का ऐड करें। सो उस टाइम हम डिफरेंट जो एडर होता है एडर को हम पास से लगा देते हैं। हम चाहते हैं क्या, एक 2 नंबर है, 2 नंबर का ऐड करें, 2 नंबर 4 बीट का है, 4 बीट का 2 नंबर हम ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे 4 फुल एडर हम लगा सके, लगा दे तो एक 2 नंबर का ऐड हो जाएगा। बट माइंड इट, एक जो फुल एडर है वो 3 बीट का ऐड कर पाएंगे, एक ऐड कर पाएंगे। नंबर का ऐड होने के लिए मल्टीपल एडर होना चाहिए, एक एडर से नहीं होगा। एक एडर से हम ओनली 2 बीट और 3 बीट का एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। तो क्लियर? यस सर। স্যার আজকে রোল নাম্বার 7 মধ্যে রোল নাম্বারটা আমাকে একটু মেল করে দিও। স্যার রোল নাম্বার 7 মধ্যে বাকি সবাই আছে। কে নেই বলো একবার বলো। রোল নাম্বার 7 মধ্যে বাকি সবাই আছে। রোল নাম্বার 7 মধ্যে বাকি সবাই আছে, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, কোনো ডাউট যদি আজকে থাকে দেখো, তাহলে আমি আজকে এখানেই ক্লোজ করি, নেক্সট দিন ফুল অ্যাডারটায় আসবো এবং তার সঙ্গে আরো সার্কিটে আসবো। হাফ অ্যাডারের যে সার্কিট ডিজাইন দেখালাম, চিপ ডিজাইন দেখালাম, সেখানে কোনো प्रॉब्लम আছে কিনা বলো। মনে রাখবে যে हाफ एडर जो चिप से हम बना रहे हैं, 1 कैरी के लिए यूज होता है पिन, 4 साम के लिए यूज हो रहा है, 5 और 8 इनपुट के लिए यूज हो रहा है। फुल एडर के लिए अलग आएगा, हाफ एडर के लिए ये है। ये चिप का कौन सा पिन में क्या होना चाहिए ये लिख कर रखे। सर प्रैक्टिकल कैसे जमा करेंगे? प्रैक्टिकल कैसे जमा करेंगे, मतलब सबमिट करेंगे? प्रैक्टिकल ये सबमिट, एक काम करो, एक फाइल तो सेव हो रहा है ना, वो फाइल सेव करो, ठीक है। उसके बाद एक मैनुअल बनाओ, कैसे बनाए हो तुम, ये सर्किट कौन सा टूल से पाए हो, उसके बाद तुमने क्या किया, वो एक फाइल में, वर्ड फाइल में लिखो। लिख के बाद हम टाइम देंगे, उस टाइम में तुम पठाओ मेरा मेल में, ठीक है, हम चेक कर लेंगे। सब मतलब ई डॉक्यूमेंट होगा ना? हाँ, सब ई डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि हम लोग तो नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए कोई प्रिंट आउट लेने का अभी जरूरत नहीं है। हम कैंपस में जाए उसके बाद ही सब कुछ प्रिंट ले, अभी तक जो होगा सब ई डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। सर मान लीजिए अभी कैंपस खुल जाता है 1 मंथ बाद, तो फिर इसका बनाना पड़ेगा क्या हाथ से? हाँ, जब हम कैंपस में चले जाएंगे तब हम सिमुलेटर से नहीं काम करेंगे, तब हम ब्रेडबोर्ड से काम करेंगे, जो लैब वाला जो मशीन्स वगैरह है उससे काम करेंगे। सर जो लैब हो गया है उसका क्या करेंगे? वो जो लैब हो गया उस लैब का देना होगा, वो लैब ई में, दैट मीन्स जो सिमुलेटर में हुआ वो सिमुलेटर से जो हुआ वो बनाओ, वो हार्ड कॉपी भी देना होगा, वो भी हार्ड कॉपी देना होगा तभी। सर तो चाप बढ़ जाएगा। है, चाप तो होगा ही,
तब एक मंथ के बाद होगा ये मालूम नहीं, कब होगा ये तो मालूम नहीं, बट अभी अभी जो नहीं होने प्रेजेंट वाला है। स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस से हम ई सब कुछ बनाएंगे, ई पेपर भी हम बनाएंगे, ई प्रैक्टिकल भी करेंगे। हम कैंपस में जाए तो उसके बाद सब डिसीजन होगा, डिपार्टमेंट जो डिसीजन लेगा वो होगा, ठीक है। ओके सर। अभी तुम ये जो प्रैक्टिकल चल रहा है ये प्रैक्टिकल करते रहो, ओके सर। ठीक है। रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल एनी डाउट्स? नो सर। ओके, मनीष बोल रहा है नो, और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो मनीष का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी जो 11 No, sir. स्टूडेंट्स है उसका प्रॉब्लम है। नो सर। बीबू का प्रॉब्लम नहीं है, बीबू प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा इंस्टॉल हो गया मशीन में, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो ओके, हम क्लोज कर रहे हैं अभी। सो सैटरडे हम आएंगे थ्योरी लेके, ठीक है। ओके सर। ओके चलो हम स्टॉप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग भी हम पठा देंगे, शेयर कर देंगे, ओके।